آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں زندگی دن بخشا ہے اور ساری دنیاوی کاموں کو مصروفیاتوں کو چھوڑ کر ہم اس کے گھر میں پہنچے ہیں۔ اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے ہم اس کے گھر جانا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، اپنے مناجاتیں اس کے آگے حضور لے کے آنا چاہیے، پھر ہی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، صحت مند اولاد کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کلیسیا کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور جب بھی موقع ملے ہمیں اس کے گھر آنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں جب تک ہم زمین پر زندہ ہیں، یہ کام کبھی نہ ختم ہونے والے کام ہیں، لیکن ہمیں خدا کو بھی موقع دینا چاہیے، پھر ہی وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ہمیں اب جو بھی تسلی اطمینان کی دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے آسودگی مانگنی چاہیے۔ آپ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آئیں ہم سب مل کر اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں گے۔ شکر ہو زمین آسمان کے پیدا کرنے والے زندہ جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس دن کے لیے، وقت کے لیے، صحت مند زندگی کے لیے۔ خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں، ہر طرح کے وائرل انفیکشن بیماری سے تو نے ہمیں بچائے رکھا ہے، تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت، تو مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اے خدا، صرف ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں وفاداری کرنی چاہیے، ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ ہم دنیاوی طور پر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتی ہیں، اس کے تیرے حضور جھکتی ہیں، لیکن چرچ نہیں آنا، اس کے آگے نہیں جھکنا۔ ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے آگے حضور جب بھی خدا موقع دے اس کے حضور جانا چاہیے، ہیکل میں جانا چاہیے، جو پاک کلام ہے اس کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، اپنی مناجاتی ادھر لے کے جانا چاہیے، اور شکر گزاری جتنی ہم شکر گزاری کریں اتنی ہی کم ہے۔ ہمارا سانس لینا ہی بہت بڑی شکر گزاری ہے، وہ ہمیں نئی نئی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتی ہوں، آئندہ اپنے فیوچر کو، اپنی زندگیوں کو، آنے والے دنوں کے لیے اس کے آگے آپ سرو کر دیں، جھکا دیں، اس کے آگے جھک جائیں، وہ خود ہی آپ کو سنبھالے گا۔ وہ ہر روز آپ کو نیا زور، نئی قوت عطا فرماتا ہے، وہ ہر روز ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ہمیں اچھے کی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور تجھ سے دعا کرتی ہوں جو ابھی تک تیرے گھر میں نہیں پہنچ سکی، ان کی رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے خدا، تاکہ وہ تیرے گھر میں آنے والی بن سکے، تیرے آگے جھکیں، شکر گزاریاں مناجاتیں لے کے آئیں اور برکتوں کو یہاں سے لے کے جائیں، تیرے پاک کلام کو سیکھیں، کیونکہ تیرے پاک کلام کو جب ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ ہمیں خدا تسلی اور اطمینان دے، ہمیں آسودہ کرے۔ اے خدا، تو خدا تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، ساری فکریں پریشانیاں اس پہ ڈال دے، جیسا کہ لکھا ہے اپنی فکریں مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ اپنی فکریں ڈال کے دیکھیں، خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پوچھ در پوچھ ہے۔ خدا تجھ سے دعا کرتی ہوں روحانی ماں کے لیے، تیری خادمہ کے لیے جس کے پاس تیرا پاک کلام ہے، تو اس کو برکت دے، وہ جو کچھ بھی بولے تو اس سے ہو کے بولے خدا، اور یہ پاک کلام ہمارے دل و دماغ پر اثر کر کے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن سکیں۔ اپنی بندی کو نیا زور، نئی قوت عطا فرما، اور زیادہ کلام کی منادی، کلام کے مکاشفات اس کے لیے کھول ہے خدا۔ صحت مند زندگی عطا فرما، اپنا اطمینان، تسلی، اپنی شادمانی عطا فرما۔ یہ سب کچھ مانگ لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین آمین آمین۔
खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें मौका दिया है कि हम पाक कलाम खुदा की बंदी से पाक कलाम सीखें और बरकत पाएं, और आप भी जब बरकत पाते हैं तो दूसरों तक इसको शेयर करें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, इस रिफाकत में, खुदावंद की रिफाकत में आप आते हो तो खुदावंद आपको संभालता है। तो आज भी उसने आपको संभाला है और आइंदा भी वो आपको संभालेगा और आपको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखेगा। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने आज तक हमें संभाला, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। परेशानियाँ आजमाइशें आईं, लेकिन खुदावंद ने अपने फजल के वसीला हमें संभाल लिया, हमें अपनी पनाह में रखा है, हमें सलामती बख्शी है, अपना इत्मीनान बख्शा है और इस लायक किया है कि हम ईमान के साथ उसकी पाक हजूरी में आके उसके सामने सिजदा रेज़ हो जाएं, उसके कदमों को चूमें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें, उसकी नेमतों को याद करें, शुक्रगुजारियों के नजराने उसके कदमों में रखें, क्योंकि खुदावंद ने अनगिनत बरकतें और नेमतें हमें अता की हैं। अगर हम उन सारी बातों पर गौर करें, उनको देखें, तो हम उन नेमतों को गिन नहीं सकते जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में हमें अता की हैं। तो हमें ज़रूर उसके पास आना चाहिए जब भी हमें मौका मिलता है। हमें कोई हीले बहाने उसकी हजूरी में पेश नहीं करने, ना कोई उज़र पेश करना है कि ये हो गया, ये तो दुनिया की बातें हैं, ये तो दुनिया ही में सब कुछ रह जाएगा। लेकिन हमने खुदावंद के सामने ईमान के साथ और इकरार करते हुए पेश होना है। सो हमें ज़रूर उसकी पाक हजूरी में आके शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उसके सामने अपनी जो भी मुनाजातें और दरख्वास्तें हैं वो रखनी चाहिए। और खुदावंद के पाक कलाम में से हमें पढ़ना और सीखना चाहिए कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या कलाम करता है, वो बोलता है और आपको अपने कलाम के वसीला से ईमान में पुख्ता करता, मजबूत करता और इसमें हमें कायम रहने का फजल अता करता है। सो आएँ जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या कलाम करना चाहता है, बोलना चाहता है। सो हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या कलाम करता है, क्या फरमाता है। सो आए मेरे साथ मिलके निकालें खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील पाक, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। 12वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। फिर यस्सु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे यस्सु ने मुर्दों में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर हालस और बेशकीमत इतर लेकर यस्सु के पाँव पर डाला और अपने पाँव से और अपने बालों से उसके पाँव पहुँचे और घर इतर की खुशबू से महक गया। मगर उसने उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यस्सु ने कहा कि उसे ये इतर मेरे दफन के दिन के लिए
रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो खुदावंद का कलाम, मुकद्दस कलाम जो मैंने पढ़ा है आपके सामने आयात यूहन्ना की अंजील में से, तो आज जो हम सीखना चाहते हैं खुदावंद के कलाम में से और इन आयात में से, क्योंकि खुदावंद के कलाम में जहाँ से भी आप पढ़ोगे एक एक लफ्ज़ उसका हमारे लिए बाइसे बरकत और एक नया भेद हमारे लिए खुलता है। कई दफ़ा हम कहते हैं ये तो हमने पहले पढ़ा, ये हमने सुना, ये हमने सीखा, लेकिन खुदावंद अपने भेदों को एक ही जगह से, एक ही लफ्ज़ से, एक ही आयत से आप पढ़ोगे तो उसमें से तरह तरह के भेद खुदावंद के नाज़िल होंगे और ज़ाहिर होंगे। और ये जो खुदावंद का कलाम मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसमें आज जो हम सीखना चाहते हैं कि यीशु सारी इज्जत के लायक है। क्या है? यीशु सारी इज्जत के लायक है। वो ही इज्जत के लायक और वो ही तमजीद के लायक, हिशमत के लायक वो ही है, बुजुर्गी के लायक वो ही है। और जो कुछ ये स्टोरी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से ये मरियम की कहानी है कि वो किस तरह उसके अंदर खुदावंद के लिए इज्जत और एहतराम था कि वो कहती थी कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसकी इज्जत और एहतराम के लिए और उसकी मोहब्बत के लिए उसके चरणों में रख दूं, उसके कदमों में रख दूं, जो कुछ मेरे पास है। और यहाँ हम जो ये सीखना चाहते हैं कि ये जो उसने इतर उसके कदमों में डाला है कि वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो इतना कीमती था कि वो 1 साल की जो किसी मजदूर की मजदूरी है, उजरत है जो उसकी, वो 1 साल की उजरत का, यानी इतना कीमती वो इतर था कि वो उन पैसों में वो इतर वो खरीद करके लेकर के आए यीशु के पाँव पे डालने के लिए। यानी इतना महंगा इतर था वो कि जो यीशु के पाँव पर उसने डाल दिया। और फिर वो यीशु के पाँव पर जब वो इतर डालती है तो फिर वो अपने बालों से उसके पाँव को पोंछती और साफ करती है कि उसके अंदर इतना यीशु के लिए इज्जत और प्यार और मोहब्बत थी, एहतराम था कि जो कुछ यीशु के लिए मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगी उसके लिए। जैसा कि आपने देखा कि दोनों बहनें, लाजर की दोनों बहनें मर्था और मरियम हमेशा यीशु के साथ उसकी खिदमत में शामिल थी। मर्था जो खिदमत गुजारी करती थी, लोगों की, यीशु के साथ जो लोग आते उसके खाने पीने का इंतज़ाम करती, उनके लिए हर तरह का उनके लिए दस्तरखान सजाती, काम करती। लेकिन जो मरियम थी वो यीशु के कदमों में बैठ के उसकी कलाम की, तालीम की बातें उससे सीखती थी। उसको इतना लगाव था यीशु के साथ और उसकी बातों और उसकी तालीम के साथ कि वो यीशु के कदमों पर बैठकर उसको देखती और सुनती और सीखती रहती थी। जिस तरह यीशु ने कहा मर्था को, तू तो दुनिया के कामों में लगी रहती है, लेकिन मरियम वो है जिसने सबसे बेहतरीन हिस्सा चुन लिया है। और जब उसको ये मकाम मिला कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया तो फिर उसके अंदर भी इतना लगाव और मोहब्बत थी कि उसने इतना महंगा इतर ख़रीदा और यीशु के पाँव पर डाल दिया और फिर उसके पाँव को उस इतर से वो साफ़ करती रही और उस पर वो तेल मलती रही कि वो इतना यीशु के साथ प्यार करने वाली थी। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद जो अजीम और भला खुदा है, कि जब हम यूहन्ना की इंजील में जिस तरह हमने ये भी पढ़ा और यूहन्ना की इंजील में ही यीशु के शाहाना जुलूस के बारे में भी हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह लोगों ने यीशु का एहतराम किया है, उसकी इज्जत की,
औरतों ने अपने दुपट्टे, अपनी चादरें उतार के यीशु के जो गधे पर जिस पे बैठा था उसके आगे बचाती थी, और खजूर की डालियाँ और दरख्तों की डालियाँ ले लेकर के आते और यीशु की इज्जत और एहतराम में उसके पाँव में बचाते और साथ उसके नारे लगाते थे, होशाना होशाना, जो यीशु खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक हैं वो लोग। और जिस तरह यीशु के एहतराम में, इज्जत में लोगों ने ऐसा किया, हमें उन सारी बातों को याद रखना चाहिए। और हम भी कलाम मुकद्दस में जब मरियम के बारे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस तरह यीशु के कदमों में बैठ के उसका कलाम सीखती और उसका पढ़ती और उसकी बातों को सीखती थी। लेकिन आज हम देखें, कहना बड़ी मुश्किल चीज़ है कि लोगों को, अपनी बहनों को हम दावत देते हैं कि यीशु के पास आके, उसकी हजूरी में आके, हम उसके चरणों में बैठ के जो कुछ हमारे अंदर मुनाजातें हैं, परेशानियां हैं, दरख्वास्तें हैं, जो भी हमारे अंदर नेक ख्वाहिशात है, ज़रूरतें हैं, हम यीशु के पास लेकर के आएँ। अगर हमारे अंदर कलाम की भूख और प्यास है, हम उसके कदमों में बैठ के सीखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, इमाल की किताब में, कि उसके शागिर्द हर रोज़ तालीम पाते, रोटी तोड़ते, दुआ करते और उस रफाकत में शामिल होते थे। और आज खुदा के खादम वो कहते हैं, खुदावंद के घर में आओ, उसकी हजूरी में आओ। बेशक खुदा के खादम जिनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वो खुदा के सिपाही हैं, आपके लिए जंग लड़ते हैं, दुआएं करते हैं, रातों को जागते हैं, जो कहते हैं हमारे लिए दुआ की जाए, रोज़ा रखा जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए, आजमाइश से हम निकल जाएं। खुदा के खादम करते हैं, लेकिन हमें भी तो चाहिए कि हम कुछ करें। बाइबल मुकद्दस में जिस तरह लिखा है कि यीशु जब कब्र पे जाता है तो वो खुद भी पत्थर को हटा सकता था, कह सकता था कि पत्थर हट जाए, लेकिन उसने कहा पत्थर को हटाओ, कुछ काम ऐसे हैं जो हमने खुद करने हैं, कुछ काम हम करेंगे तो यीशु भी हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देगा, बरकतों के दरवाजे खोल देगा, आसमान के दरीचे हमारे लिए खोल देगा। लिहाजा हमें उसकी हजूरी में आने की ज़रूरत है। यही हमारे अंदर उसके लिए इज्जत और एहतराम होगा कि हम उसकी पाक हजूरी में आएं। बहुत सी बहनों को कहा जाता है, बेशक हम इतवार को इबादत करते हैं, कलाम मुकद्दस में जिस तरह लिखा है, लोग आते हैं इबादत, ये रूटीन की इबादत, लेकिन हमें जब भी मौका मिले हम खुदावंद की पाक हजूरी में आके अपनी मुनाजातें, अपने घरानों की परेशानियां, मुश्किलात, आजमाइशें, अपनी फ़िक्रें उसके पास लेकर के आएं। वो सुनता है, वो हमें जवाब देता है। और फिर ये है कि हमारे अंदर उसके लिए एहतराम और इज़्ज़त होना चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो ही इज़्ज़त के लायक है, यीशु ही इज़्ज़त के लायक है। तो मरियम ने क्या सबूत दिया? उसने यहूदा इस्करियोती की बात पर गौर नहीं किया, लेकिन यीशु ने कहा कि ये इसने मेरे लिए किया है, मेरे दफन का जो उसने करना था, जो कुछ उसने अभी मेरे साथ वो किया है। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इज़्ज़त के लायक वही है जो खुदावंद के कलाम में लिखा है। मकाशवा 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत अज़रा आप पढ़ें कि कलाम में यस्सु के बारे और उसकी इज़्ज़त और एहतराम के बारे क्या लिखा हुआ है। 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है। पांचवां बाब 12वीं आयत। अब आप
बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। ज़बा किया हुआ बर्रा ही, ज़बा किया हुआ बर्रा कौन है? यस्सु मसीह को बर्रा कहा गया है। वो ही इज़्ज़त, हशमत, बुजुर्गी के लायक खुदावंद है। और वहाँ पर फरिश्तगान 24 बुजुर्ग और बहुत से लाखों करोड़ों जो फरिश्तगान और बुजुर्ग थे, वो यस्सु को कह रहे थे और पुकार रहे थे और नारे लगा रहे थे कि यही बर्रा, इज़्ज़त, हशमत, बुजुर्गी के लायक खुदावंद है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में आज हम यही सीख रहे हैं कि वो इज़्ज़त के लायक है, वो हशमत के लायक है। मरियम ने जो कुछ किया यस्सु की इज़्ज़त और एहतराम में किया। उसके पाँव में उसने इतना महंगा इत्र डाल के उसकी इज़्ज़त और एहतराम, उसकी कदम बोसी की। अपने आप को जो कुछ उसके पास था उसने उसके एहतराम में पेश किया है। यही इज़्ज़त के लायक है। ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत के लायक वही है। हशमत, दौलत, हम, ताकत, तमजीद के लायक हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है, जिसकी हम कर सकते हैं। और फिर फिलिपियों के ख़त में हम देखते हैं 2 बाब और 10वीं और 11वीं आयत में ये लिखा है कि जहाँ ताकीद की गई है कि यस्सु के नाम पर हर घुटना झुकेगा। यस्सु के नाम पर क्यों झुकेगा? उसकी इज़्ज़त एहतराम के साथ, उसकी इज़्ज़त के लिए चाहे आसमान के, ज़मीन के और चाहे ज़मीन के नीचे रहने वाले सारे घुटने सर खुदावंद के सामने झुक जाएंगे। उसकी इज़्ज़त के लिए, उसके एहतराम के लिए हर घुटना और हर ज़बान इकरार किया करेगी कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज़्ज़त, हशमत, बुजुर्गी, हम, तारीफ, तमजीद के लायक हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। ये खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हर एक ज़बान इकरार करे कि वो ही इस लायक है। हम देखते हैं कि खुदा के लोग, ईमानदार लोग जो यस्सु मसीह का इकरार करते हैं कि यस्सु हमारा नजात दहिंदा है, ईमानदार लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, और फिर जब हम इकरार करते हैं तो हम दूसरों को भी मजबूर करेंगे कि यस्सु के एहतराम में उसके सामने आके झुक जाओ, उसकी तारीफ करो, उसकी तमजीद करो, उसकी सिताइश करो, क्योंकि वो ही हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हमें लोगों को मजबूर करके लाना चाहिए कि आओ मिलकर हम उसका इकरार करें कि वो ही इज़्ज़त के लायक खुदावंद है। आओ उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें। हीले और बहाने ना बनाओ, उज़र ना पेश करो। आज हमें ये हो गया, आज हमें ये हो गया, आज मौसम ऐसा, आज गर्मी ऐसी, मौसमों का आप उज़र पेश करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके उज़र पेश करते हैं। लेकिन खुदावंद के पास जो आ जाते हैं बरकत वो ही पाते हैं, जो उसकी रिफाकत में आ जाते हैं, जो उसके कदमों में आके झुक जाते हैं, जो वफादारी के साथ उसके पास आते हैं, जो उसकी फर्मा बरदारी करते हैं लायक तौर से। खुदावंद उन्हें बरकत देता है, उनके लिए आसमान के दरीचे खोल देता है। अलबत्ता हमें उसके पास आना चाहिए। ये भी हम भी उन ईमानदारों के साथ, फरिश्तगान के साथ, 24 बुजुर्गों के साथ मिलके बर्रा के तख्त के सामने ज़ोर ज़ोर से पुकारें कि वो ही इज़्ज़त के लायक है, हम्द के लायक है, हशमत के लायक है, तारीफ़ के लायक है, तमजीद के लायक है, बुजुर्गी के लायक वो ही अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। हमें इन लोगों को मजबूर करके लाना है, इन्हें बताएं कि आप इन छोटी छोटी बातें जो आपके अंदर हैं
ये करके आप उज़र पेश करते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या खो देते हो। कलाम में लिखा हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। हो सकता है आज ही वो वक्त मुकर्रर है कि खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब अभी इसी वक्त दे देगा, लेकिन आप बहाने बना के घरों में बैठे। यीशु के पास आए। मरियम वो औरत थी जिसके बारे में लिखा हुआ है कि अच्छा हिस्सा उसने चुन लिया। जब चुन लिया तो फिर उसके अंदर था कि मैं यीशु के एहतराम में जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं उसके लिए करूँगी। चाहे छोटी चीज़, मैंने खुदा की बंदियाँ मैंने देखी हैं कि वो छोटे छोटे काम करके यीशु के लिए, उसकी खिदमत के लिए जो कुछ उनसे हो सकता है वो अपने दिल का और आपके जो अंदर एहतराम है उसका इजहार करती हैं। मैंने देखा है कि यीशु के एहतराम के लिए वो छोटे छोटे काम खिदमत करके अपने दिल में इत्मीनान को पा लेती हैं कि वो ये काम करके उन्हें इत्मीनान मिलता है कि मैंने जो कुछ किया यीशु के लिए किया। कलाम में लिखा है जो कुछ करो जी से करो, क्योंकि तुम किसके लिए करते हो? जी जान से करो, यीशु के लिए करते हो। तो खुदावंद फिर आपको बरकत भी देता है, आपके लिए दरवाजे भी खोल देता है। जिस तरह उन्होंने यीशु के साथ मिलके वो सारे हम्दो सिताइश उसकी कर रहे थे मरियम के लाजर के घर में बैठ के, तो उन्होंने उसके लिए ज़ियाफ़त तैयार की थी। ये उन बहन भाइयों का क्या था? एक प्यार, एक मोहब्बत, एक चाहत, एक एहतराम कि उसने हमारे लिए इतना बड़ा मौजज़ा किया है। तो उन बहन भाइयों ने मिलके उसके एहतराम में उसकी दावत की, उसे घर में बुलाया। और यीशु जब उनके घर आता है तो जब इतर उसके कदमों में डाला जाता है तो सारा घर महक उठता है। और जो इतर उसके बालों के साथ उसने यीशु के पाँव, जो कहते हैं ना बाल एक औरत की जीनत है, इज्जत, उसने अपने बालों से यीशु के पाँव पहुँचे हैं। तो फिर यीशु ने भी उसको ऐसा मकाम बख्शा कि ये जो कुछ करती है ये जब तक दुनिया है उसमें यादगारी के तौर पर उसको याद किया जाएगा कि मरियम ने यीशु के लिए क्या किया था, उसके एहतराम, उसकी इज्जत के लिए। तो जब उसने पाँव पहुँचे इतर के साथ, खुशबू सारे घर में महक गई। और मेरा ख्याल है मरियम जहाँ जहाँ जाती थी वो तो कई महीने खुशबू उसके बालों से नहीं गई होगी, क्योंकि इतना कीमती इतर। हम किसी को कहते हैं बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा परफ्यूम आपने लगाया, बड़ा कीमती है, इसकी खुशबू तो चाहे आप कपड़े धो भी लो तो नहीं जाती, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह आप उन बातों पे गौर करो जो मरियम ने इतना कीमती इतर यीशु के कदमों पे डाल दिया, तो वो कई सालों तक उसकी खुशबू और महक उस घर से और उनके अंदर से नहीं गई थी। हमें भी यीशु के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसकी इज्जत के लिए जो कुछ हम उसके लिए कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। और हम करें तो खुदावंद हमें बरकत देगा। खुदावंद यीशु मसीह के एहतराम में उन्होंने जो कुछ किया है उसकी यादगारी आज तक की जाती है। ये यादगारी है, उसकी यादगारी आज तक की जाती है कि मरियम ने यीशु के लिए क्या कुछ किया है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमें यीशु को जो कुछ भी उसकी नज़र करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम यीशु के लिए क्या कर सकते हैं और क्या तोहफा उसको दे सकते हैं। मरियम ने तो इतना कीमती इतर उसके कदमों में डाल के उसकी इज्जत के लिए इतना कीमती तोहफा यीशु के कदमों में रख दिया और अपने बालों से उसके पाँव पहुँचे हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में जो हम सीख रहे हैं कि मरियम ने किस तरह उसका एहतराम किया और उसकी इज्जत की, क्योंकि वो ही दो चंद इज्जत के
लायक है। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह की इज़्ज़त के लिए कीमती चीज़ नसार कर देनी चाहिए, जिस तरह मरियम ने अपना कीमती इतर यीशु के कदमों में डाला है। जो हम कलाम में सीखते हैं कि जब भी हम देखते हैं मरियम के बारे जो जिक्र है, जो इतर उसने पेश किया, कीमती तोहफा यीशु को दिया है, तो हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को अपने घर में दावत देते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, तो जब हम उसे दावत देते हैं, जिस तरह उन्होंने घर में ज़ियाफ़त तैयार की और यीशु को बुलाया, तो आप तजर्बा करके देखो कि आपके घर में एक नई महक और खुशबू, क्योंकि यीशु खुशबू की मानद है, वो जहाँ आ जाता है, जिस जगह पर मौजूद होता है, वो जगह उसकी कुदरत और इज़्ज़त से महक जाती है, उसकी खुशबू से। क्योंकि यीशु को खुशबू के साथ तशबीह दी गई है कि यीशु खुशबू है, जहाँ होता है वहाँ वो जगह, वो घर, वो ख़ानदान महक जाते हैं उसकी खुशबू से। तजर्बा करके देखो, यीशु को घर दावत दो, उसको बुलाओ, कि जब आप यीशु को अपने घर में बुलाओगे, उसको दावत दोगे, उसकी ज़ियाफ़त करोगे, तो आपका घर भी खुशियों से महक जाएगा। इत्मीनान और तंदुरुस्ती और हर तरह की बरकतें आप पर नाज़िल होंगी। जिस तरह मरियम ने यीशु के कदमों में कीमती इतर डालकर उसका इज़्ज़त और उसका एहतराम किया है, और हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मरियम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। कई दफ़ा हम देखते हैं कि ऐसे लोग, बहनें, मर्द भी हैं, जिसमें बेटे बेटियां शामिल हैं, कि वो छोटी छोटी खिदमत करके अपने आप को ये महसूस करते हैं, ये करके खुदावंद की खिदमत के लिए वो इत्मीनान महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि खुदावंद ने मुझे ये बरकत दी, खुशी उनके अंदर होती है कि मैंने ये यीशु के लिए किया है, मैंने यीशु की खिदमत के लिए ये किया है। तो खुदावंद उन्हें इज़्ज़त और एहतराम हर तरह का जो हम यीशु को देते हैं, इसके इव्ज़ वो हमें बरकत देता है। और फिर ये देखते हैं कि जो उसने इजहार किया है खुशबू का, इतर की खुशबू, वो हमारी नस्लों तक वो पहुंच रही है। क्यों? किस तरह नस्लों तक पहुंच रही है वो खुशबू? कि वो यादगारी, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी यादगारी में ये लिखा गया है, कहा जाएगा कि जो मरियम ने किया। तो ये नस्लों तक, जब तक हमारी नस्लें हैं, हम ये बाइबल मुकद्दस में पढ़ते रहेंगे और लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। नस्लें हमारी ये सीखती चली जाएंगी कि मरियम ने यीशु के कदमों में इतर डाला, और वो जगह और वो सारा माहौल उस इतर की खुशबू से महक गया। हमारी नस्लें भी याद करेंगी इस चीज़ को, हमारी नस्लें भी इस चीज़ को याद रखेंगी कि मरियम ने यीशु की इज़्ज़त एहतराम के लिए जो कुछ उसने मोहब्बत का इजहार किया है, उसको बरकत मिलेगी। और उस देखो, मरियम को आज तक याद किया जाता है, ये कलाम मुकद्दस में लिखा। आपकी आने वाली नस्लें भी इस बात को याद रखेंगी और नस्लों तक ये बात पहुंचती चली जाएंगी। हम भी अपने बेहतरीन जज्बात और बेहतरीन चाहतों का इतर उस पर डालें। बेहतरीन जो हमारी चाहते, जो हम चाहते हैं कि हम यीशु के लिए करें, हमारे अंदर जो यीशु के लिए जज्बात है, खुशी है, खिदमत करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए वो करें।
یہ نہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کر کے یا بہت زیادہ دولت پیسہ لگا کے ہی ہمیں سکون ملے گا. ہم اس کے احترام کے لیے، عزت کے لیے جو ہمارے اندر جذبات ہیں ہم اس کی خدمت کے لیے کریں تو خداوند اس کے عوض آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا. جو کچھ ہم اس کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں اور جو ہمارے اندر خوشی ہے کہ ہم یسوع کے لیے یہ کریں گے، ہمیں بھی چاہتوں کا عطر اس پر ڈالیں اور وہ گھر عطر کی خوشبو سے مہک جائے گا. جو لوگ اپنے دلوں اور گھروں میں مسیح کو اتارتے ہیں وہ انہیں اس میٹھی خوشبو سے مہکا دیتا ہے. اتنی میٹھی اور شاندار خوشبو ہوتی ہے جس گھر میں یسوع آتا ہے، جس گھر میں یسوع کی باتیں ہوتی ہیں، جس گھر میں یسوع کی پرستش ہوتی ہے، یسوع کی ستائش ہوتی، اس کی حمد ہوتی ہے، وہ گھر اس کی خوشبو سے مہک جاتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جس گھر میں لڑائیاں فساد، ہر طرف کسی نے ادھر منہ پھیرا ہے، ادھر ہے، نفرت ہے، حسد، گھر میں بھی ایسے ہی ہیں، لڑائیاں جھگڑے، کہتے ہو تو کرو پانی بھی نس جاندہ ہے، جو کچھ ہے رزق بھی نس جاندہ ہے. لیکن جس گھر میں یسوع ہے اس گھر سے کبھی مٹکے سے آٹا کبھی نہیں خالی ہوگا اور نہ آپ کی کپی سے تیل جائے گا. خداوند آپ کو کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کے لیے کر دے گا کہ وہ، کیونکہ آپ یسوع کو یاد رکھتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں. جو کچھ آپ کے اندر جذبات ہیں آپ اس کو پیش کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تحائف جو ہم یسوع کو دے سکتے ہیں، جو ہم یسوع کو تحائف تحفے دے سکتے ہیں وہ کیا ہیں. یہ بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم یسوع کو کون سا تحفہ تحائف دے سکتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کے اندر اظہار محبت کا یسوع کے لیے کرنا چاہتے ہو، آپ کسی بھی طریقے سے کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ یسوع کی خدمت کر کے، اس کے قدموں میں بیٹھ کے، اس کی قدم بوسی کر کے، اب اسے سجدہ تعظیم پیش کر کے، حمد کے گیت گا کے، ہونٹوں سے اس کی تعریف اور حمد کے گیت گاؤ تو خداوند اس کا بھی آپ کو اجر دے گا. آپ یہ تحفے تحائف یسوع کو پیش کر سکتے ہیں. یہ خداوند کے کلام ہی میں سے ہم سیکھیں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیں خداوند کے کلام میں سے رومیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور پہلی آیت سے دوسری آیت تک. سٹیلا آپ پڑھیں. رومیوں کا خط 12واں باب. بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کہ ہم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی معقول عبادت ہے. ہم وہ کام کریں جو یسوع کو پسند ہے. ہم اس کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں جو یسوع کو پسند ہے، اور یہی ہماری معقول عبادت ہے. ہم یہی اس کی نظر کر سکتے ہیں، ہم یہ تحفہ اسے دے سکتے ہیں، ہم تحائف اسے پیش کر سکتے ہیں. اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے پیش کرو جو یسوع کو پسند ہو، اس کی عبادت کرو، یہی تمہاری معقول
इबादत है, उसके पास आओ, अपने बदन उसकी कुर्बानी के लिए पेश करो। यही हम सीखना चाहते हैं, इसलिए कि हम देखते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार जो हम करना चाहते हैं, अपने बदन यीशु की खुशी के मुताबिक और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारने के लिए उसकी नज़र करें। कहते हैं जो यीशु को पसंद है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर छोटी छोटी गलतियां और हम कोताहियां करते रहते हैं। हम कभी कभी ईमान से भी हट जाते हैं, हम ईमान में भी कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन हमने वो कुर्बानी यीशु के सामने पेश करनी है, उसकी नज़र करनी है जो उसे पसंद है। अपनी ज़िंदगी में ऐसी कुर्बानियाँ यीशु को पेश करो। जो हमारे अंदर ऐसी गलतियां हैं, हम उनको निकाल के हम यीशु के पास आ जाएं, उसकी हजूरी में आएं, उसकी इबादत करने के लिए आएं। ये यीशु को पसंद है। यही माकूल इबादत है, कलाम में लिखा हुआ। उसकी नज़र करो, उसको तोहफा पेश करो। ये हम तेरी इबादत करने आते। छोटे छोटे बच्चे संडे स्कूल में गाते हैं, आते हैं बंदगी में यीशु को मिलने को, जल्दी जल्दी आए, अपना सर झुकाएं। ये बच्चे बचपन ही से सीखते हैं, और वो सीख सीख के जब हम जवान होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो बातें हमारे अंदर ही होती हैं कि हमने यीशु को सिजदा करने के लिए, उसका एहतराम करने के लिए, उसकी इज्जत के लिए हमने अपने बदन, उसकी कुर्बानी, ये जो है हमारे अंदर, वो पेश करने हैं, जो हमारी माकूल इबादत है। हमें पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ उसके कामों को, उसके कलाम को अपने दिल दिमाग में जो कुछ है हमारे अंदर, उसके सुपुर्द करें। कई दफ़ा हम चर्च में कहते हैं कि पूरे ध्यान अक्ल के साथ हम उसकी इबादत करें, दिल जमई के साथ उसकी इबादत करें। ये हमारी माकूल इबादत है, ये कुर्बानी हमने पेश करनी है कि हम दिल की अथाह गहराइयों से उसकी प्रस्तुति करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। ये हम तोहफा उसे पेश करते हैं, उसकी नज़र करते हैं कि हम तुझे सिजदा करने को आए हैं, हम तेरी हम्द करने को आए हैं, हम तेरी सिताइश करने को आए हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसे हीले बहाने उज़र हमारी ज़िंदगी में हर वक्त है, हमें कोशिश करनी है हम उनको निकाल के उसकी पाक हजूरी में आ जाएं और इस आयत पर गौर करें कि हम उसको क्या नज़र करना चाहते हैं, हम क्या तोहफा उसको देना चाहते हैं। मरियम ने तो इतनी कीमती तोहफा उसने उसके कदमों में डाल दिया, हम उसे क्या तोहफा देना चाहते हैं, क्या तोहफ़ हैं जो हमारे पास, जो हम यीशु को पेश करना चाहते हैं। कलाम मुक़द्दस में जो हमने पढ़ा है कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में सलाहियतें हैं, जो कुछ हमारे पास है, अक्ल है, फहम जो खुदावंद ने हमें दिया है, हम उसके पास ले कर के आए। जिस तरह हम देखते हैं हमारी संडे स्कूल टीचर, जो कुछ खुदावंद ने उसे दिया है, तोड़ा बख्शा है, उसने उस तोड़े के दबा के नहीं रखा, वो उससे और कमा रही है, और कमा रही है, वो बांट रही है, लोगों को दे रही है, नस्लों को बांट रही है। ये उसकी माकूल इबादत और खिदमत है, जो यीशु की नज़र खिदमत करके वो अपने आप को उसने पेश किया हुआ है। जो कुछ हमारे पास है वो हम उसके पास ले कर के आए, कि हम तेरे पास ले कर के आते, अपने रूह बदन जान को तेरे पास ले कर के आते। ये हम तेरी नज़र करते हैं खुदावंद। हम जो दुनियावी वक्त है हम उसको ख़त्म करके हम तुझे वक्त देना चाहते हैं। ये हमारी माकूल इबादत और कुर्बानी, और जो कुछ हमारे पास तोहफ़ा है, नेमत है, जो उसने हिकमत और दनाई हमें बख्शी है, हम ले कर के यीशु के कदमों में आ जाए, अपने तोहफे, तहाइफ, नजराने ले कर के उसके पास आएँ, तो खुदावंद
آپ کو برکت دے گا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مریم نے کیا ہے، کیا جو اس نے تحفہ یسوع کو دیا، کیا وہ ضائع ہوا؟ وہ کبھی ضائع نہیں ہوا، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ یادگاری کے طور پر اسے پیش کیا جائے، اور اس کی یادگاری میں یہ کہا جائے گا۔ بے شک یہودا اسکریوتی نے تو اس کے لیے بڑبڑایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، لیکن یسوع نے بھی اس کو چپ کرا دیا۔ جس نے جو کچھ کیا ہے میرے لیے کیا، اور اس کو نسلیں بھی یاد رکھیں گی، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی۔ جو کچھ خداوند نے ہمیں ایسی ایسی نعمت، حکمت، دانائی دی ہے جو ہم یسوع کے لیے کر سکتے ہیں، ہم ایسی قربانیاں یسوع کے پاس لے کر آئیں، اس کو پیش کریں، اس کی نظر کریں۔ تحفے تحائف جو ہماری زندگی میں ہیں ہم اس کے پاس لے کر کے آئیں۔ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے زبور 112 اور اس کی 6 آیت میں بھی یہ لکھا گیا ہے۔ اسٹیلا آپ پڑھیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ 112 6 آیت۔ اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ آمین آمین۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح مریم نے کیا، اس کی یادگار نسلوں تک چلتی رہے گی، یہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اور زبور 112 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ صادق یعنی خدا کے لوگ، ایماندار لوگ، راست باز لوگ، صادق انہیں کہا گیا، ان کی یادگار ہمیشہ رہے گی، اس کی نیک نامی ہمیشہ رہے گی۔ کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی مرد جب خدا کے پاس چلا جاتا ہے اور جو اس نے اچھے کام، اس نے نیک کام کیے ہوتے ہیں، تو انسان ہمیشہ انہیں یاد رکھتا ہے۔ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ ہم انہیں یاد کرتے ہیں، فلاں خدا کا بندہ یا خدا کی بندی بڑی راست باز، خدا کی خدمت کرنے والی، نیک کام کرنے والی، اس کی راہوں پر چلنے والی، ہم ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ اس نے خداوند کے ساتھ رہ کے، ایمان میں مضبوط رہ کے نیک کام کیے، اور صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، اور اس کی نیک نامی جو کچھ اس نے کیا ہے ہمیشہ وہ رہے گا۔ جس طرح خدا کے کلام میں لکھا، ہم نے پڑھا کہ وہ خدا کے حضور اور نیک لوگوں کے درمیان نیک نام رہے گا۔ وہ بندہ جس کی یادگار ہمیشہ رہے گی کہ وہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ اس کی یادگاری رہے گی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ کئی لوگ ایسے صادق تھے جن کی یادگار ہمیشہ رہے گی، جو خداوند کو پیار کرنے والے، اس کا احترام کرنے والے، وہ آسمان سے بھی ان کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح آج بھی مریم کو یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے عطر ڈال کے یسوع کی عزت اور احترام اور اپنی محبت اور اپنی چاہت اور جو کچھ اس کے اندر جذبات تھے، اس نے اس کا اظہار کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم یسوع کو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 13واں باب اور 15ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے۔ عذرا آپ پڑھیں، عبرانیوں کا خط 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اوکے اسٹیلا آپ پڑھیں۔ ہاں جی۔ بس ہم اس کے وسیلہ سے ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ آمین آمین۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہم اس کی حضور قربانی پیش کریں۔ کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں بھی تمام ایماندار
और पुराना अहदनामा जब हम पढ़ते हैं कि खुदा के लोग, ईमानदार लोग जो खुदा की हजूरी में आके, हैकल में आके उसकी परस्तिश करते थे और हम्द की कुर्बानी पेश करते थे। आज हम भी हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, हम्द करने का मौका मिलता है, परस्तिश करने का मौका मिलता है। और जो आगे मीटिंग लीड करने वाला प्रेजाइड करता है वो कहता है गीत गाओ, उभारता है, परस्तिश करो, जोश से करो, तालियां बजाओ, क्योंकि हम उसकी हजूरी में उसकी हम्द करने के लिए आए हैं। तो हम हम्द, कई लोग हल्का हल्का बस ऐसे होंठ हिलाते हैं, एक्शन करते हैं, लेकिन दिल और दिल की गहराइयों से उसकी हम्द नहीं करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है हम्द की कुर्बानी उसकी हजूरी में पेश करो, ये उसको पसंद है और वो इससे खुश होता है। होंठों का फल उसकी हजूरी में पेश करो, यानी अपने होंठों से उसकी हम्द करो, उसकी सिताइश करो, इससे वो खुश होता है। जिस तरह मरियम ने इतर डाला और यीशु मसीह खुश हुआ कि इसने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, मेरे दफन के लिए और मेरे मरने के लिए जो कुछ उसने करना था उसने आज किया है। हमें भी खुदावंद की हजूरी में अपने होंठों का फल यीशु की हजूरी में आके पेश करना है। हमारी तमाम हम्द और दुआएं मसीह के वसीला से खुदा बाप के पास पहुंचती हैं। हम्द की कुर्बानी उन होंठों का फल है जो उसके नाम का इकरार करते हैं, है ना। होंठों का फल क्या है कि हम अपने होंठों से उसका इकरार करते हैं कि यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है, इकरार करते हैं। ये होंठों का फल, होंठों का फल उसकी हजूरी में आके पेश करो, उसकी इबादत करो, वो खुदावंद को पसंद है। जिस तरह कलाम में लिखा है कि उसने जो मरियम ने किया, फिर लिखा है कि फिर तेरी जो अपने माल दौलत की दौलत तेरे पास है उसकी कुर्बानी पेश करो, यानी सहावत करो, भलाई का काम। जिस तरह मरियम के लिए यीशु ने कहा कि भलाई का काम उसने किया है, और यहाँ भी लिखा हुआ है जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसकी भलाई, यानी जो कुछ खुदावंद के लिए या किसी और के लिए या किसी की ज़रूरत पूरी करके आप कर सकते हो, ये भी कुर्बानी है, हम्द की कुर्बानी है, होंठों की कुर्बानी है जो करार करते हैं। और फिर ये है तीसरी कि अपने माल दौलत से उसकी कुर्बानी को हम पेश करें। जो कुछ हमारे पास है हम किसी की मदद करके हम खुदावंद को खुश कर सकते हैं। जब हम किसी के लिए भलाई का काम, सहावत का काम, यानी किसी के साथ उसकी मदद करना, उसको उसकी रुपए पैसे से हेल्प करना, तो इससे भी खुदावंद खुश होता है। और पहला पत्रस दूसरा बाब में भी ये लिखा हुआ है कि हम किस तरह अपनी ये कुर्बानियाँ उसके हजूर पेश कर सकते हैं, किस तरह उसको तोहफ़ दे सकते हैं, किस तरह उसको ये तोहफे दे सकते हैं। पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में भी ये लिखा हुआ है कि मूसा की शरीयत के वक्त भी उस वक़्त कुर्बानियाँ क्या देते थे? परिंदों की, जानवरों की, गंदम की, अनाज की और चीज़ों की कुर्बानियाँ देते थे। लेकिन नए अहदनामा में आप पढ़ो तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को कैसी कुर्बानी पसंद है। जो कुछ हमारे पास है हम उसकी नज़र करें, हम की कुर्बानी उसको पेश करें, होंठों का फल उसके पास ले कर के आए, सहावत के लिए, भलाई के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो उसके कदमों में ले कर के आए। ये भी उसके लिए तोहफ़ा है, उसको नज़र करें आप। खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि आप उसके पास ये लेकर के आएँ। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੰਡਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। हमने वो नज़र करना है जो यीशु को पसंद है। थोड़ा है, ज़्यादा है। मैं किसी से बात कर रही थी
کہ کسی قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا اچھا کھانا لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، اچھا کھانا، یہ نہیں کہندے نے چلو اینو انج ہی کر دے، وہ دیو لوکاں نوں خوشی کرنا ہے نا کہ انہاں نے بڑا کھانا ونڈیا، اج انہاں نے بڑی نیاز دتی ہے، اج انہاں نے شکر گزاری، شکر گزاری کنوں دتی ہے؟ انساناں نوں۔ شکر گزاری کا پھل خدا کی حضوری میں لے کر کے آؤ، اور جو کچھ بہترین حصہ اس کے پاس لے کر کے آؤ۔ مریم نے بہترین حصہ چنا تو خداوند آج تک نسلیں اس کو یاد کر رہی ہیں۔ تو ہم بھی وہ نظر خدا کو پیش کریں جو اس کو پسندیدہ ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، نہ کہ ہم انسانوں کو خوش کریں، نہ اپنے آپ کو خوش کریں کہ اسی بڑا کچھ کر لیا۔ ہم نے خدا کو خوش کرنا، جو کچھ کریں گے کہ ایک ہاتھ سے ایسے دے دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو، اسی کہنے اے ویکھو اسی کی کیتا جائے، سارے نو بلاؤ، اینو دے دی انہوں رہن دی بچوں۔ خدا تو ایسی قربانی پسند نہیں کرتا، خدا تو ایسی شکر گزاری بھی پسند نہیں کرتا، خدا تو ایسی نظریں بھی پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ ہمارے دل میں ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہم یسوع کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کریں، اور وہی ہم یسوع کے قدموں میں لے کر کے آئیں، جس سے یسوع خوش ہوتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کو جو پسندیدہ ہم وہ کریں۔ یہ روحانی پرستش کا ایک عمل ہے، جس طرح عبرانیوں کے ہاتھ میں پڑھا کہ ہم کی قربانی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر تیسرا نیک کاموں کی قربانی، بھلائی کی قربانی دینا نہ بھولو، اس قربانی سے بھی خدا خوش ہوتا ہے۔ مال دولت کی قربانی، سخاوت کرنا نہ بھولو، بھلائی کرنا نہ بھولو، خدا خوش ہوتا ہے اس قربانی سے بھی جو آپ کرتے ہیں۔ خدمت کی قربانی، جس طرح پولس رسول غیر قوم میں خدمت کی قربانی پیش کرتا ہے، خدمت کر رہا تھا، حالات کیسے تھے لیکن اس نے خدمت کی، جو کچھ وہ قربانی پیش کر سکتا تھا اس نے کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں خدا کے لوگوں کو، اس کے خادموں کو، کاہنوں کو، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، جو کچھ وہ یسوع کی نظر کر سکتے ہیں، جو کچھ وہ قربانی دے سکتے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جو یسوع کو پسند ہے، جس سے یسوع خوش ہوتا ہے۔ بھلائی کا کام کرو، جس طرح مریم نے کیا، یسوع کے پاس لے کر کے آگی قیمتی تحفہ۔ ہمیں بھی یسوع کے پاس جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم اس کے پاس لے کر کے آئیں۔ یسوع کو ہم نے خوش کرنا ہے، اس کی عزت کے لیے جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے احترام میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ کریں۔ جو کچھ تحفہ تحائف اس کو دینا چاہتے ہیں، نظر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی حضوری میں پیش کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اسی لکھاں روپیہ دے کے انہوں ایسی نہ دائی کی دین لگے جی، ایسی چندہ دین لگے جی۔ اس کو دیکھو، اس بیوہ عورت کو 2 دمڑیاں یسوع کے پاس لے کر کے آتی، تو یسوع نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ اس نے دیا۔ تو یسوع نے اس کو یاد رکھا جس نے 2 دمڑیاں دی۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر جو کچھ تھا، محبت تھی، اظہار تھا، اس نے آ کے یسوع کے پاس کیا۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں تیرے پاس لے کر کے آئی، نظر کیا، قربانی پیش کی۔ پادری صاحب نے گیت لکھا ہے، ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ، یسوع کے پاس لے کر کے، ہونٹوں کا پھل جو ہم اقرار کرتے ہیں اپنے ہونٹوں سے کہ یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو پھر یسوع کے وسیلہ سے یہ خدا کے پاس ہماری قربانیاں پہنچتی ہیں، اور پھر خدا خوش ہو کے ہمیں اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ جس طرح مریم کو آج تک یاد رکھا گیا ہے کہ اس کی یادگاری وہ ہے
جو ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. جب بھی وہ کلام مقدس کو پڑھیں گے یہ مریم کے بارے کہ اس نے یسوع کی کیسے عزت اور احترام اور اپنی محبت کا اظہار کیا، ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اور پھر یہ یاد رکھیں گی کہ جو کچھ اگر مریم نے کیا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اگر اتنا قیمتی تحفہ نہیں، جو کچھ پھر کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ قربانیاں آپ پیش کر سکتے ہو وہ کرو. حمد کی قربانی، ستائش، پرستش اور جو کچھ اس کی خدمت کے لیے آپ کر سکتے ہو، جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے جو کچھ آپ نظر کر سکتے. اگر آپ کو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، باتیں لوگوں کی سننی پڑے، لیکن آپ اس کی قربانی پیش کر کے پھر اس کو لے کے پیچھے نہ ہٹے. نہیں وہ فلانا مینوں بڑیاں گلاں کردا، وہ نہیں میں نہیں کر سکتا، وہ نہیں میری عزت نہیں ہو رہی، میری تو لوکاں سامنے بڑی بےزتی ہوئی ہے. جو کچھ آپ کے پاس آپ نے ایک دفعہ ٹھان لیا ہے کہ میں یسوع کے لیے یہ کروں گا، وہ آپ کر کے دکھاؤ. ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم یسوع کے لیے کریں گے، ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. سو خداوند آپ کو برکت دے گا. آپ اس بات کو یاد رکھو کہ مریم نے کس طرح قیمتی عطر ڈالا، وہ گھر خوشبو سے مہک گیا، اور ہماری نسلیں بھی اس خوشبو کو یاد رکھیں گی اور ان کے دماغوں میں یہ خوشبو مہکتی رہے گی جو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. اور پھر قربانیاں بھی پیش کرو، حمد کی قربانی، ہونٹوں کا پھل، سخاوت کا کام، جو سب یسوع کو پسند ہے. سو آئیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں شکر گزاری کریں کہ خداوند تو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، تو کلام کرتا ہے، تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس خوشبو کو لے کے آگے بڑھیں. ہم یسوع مسیح کو اپنے گھر میں اتاریں تاکہ ہمارا گھر اس مہک خوشبو سے مہک جائے. آج لوگ خدا کے خادموں کو گھر میں اتارنے سے ڈرتے ہیں. اور نہیں، آئے گا نہ ٹائم ضائع، نہ پیسے ضائع، نہ کچھ ضائع. اسی تے جو ہور بڑے کام کرنے آ کے ساڈا ٹائم ہو. ایک دفعہ کوئی بندہ تھا، دعا گو بندہ، وہ جاتا ہے کسی کا دروازہ نوک کرنے کہ میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور شریف انسان، خدا سے پیار کرنے والا، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ بھائی جی اج ساڈے کو ٹائم ہی نہیں، ساڈے پروہنیاں نے آنا ہے، پھر آنا کسی دن دعا کر. اور اس نے آ کے پادری صاحب کو بتایا، کہنے ساڈے کو ٹائم نہیں. اگر آپ کو آج وقت نہیں خداوند کو دینا چاہتے تو پھر یاد رکھیں کہ کیا خدا کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہوگا؟ وہ آپ کو برکتیں دینے کے لیے ریڈی ہوگا؟ کہ آپ خدا کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ آپ اپنے گھر میں خدا کے خادموں کو نہیں اتارتے، نہیں بلاتے، نہیں دعوت دیتے؟ کیونکہ لوگ تو کئی گھروں میں بلاتے ہیں، خداوند پادری صاحب ساڈے گھر آ کے دعا کرو. اتنے تو تسی کر ہی دیندے ہو، لیکن گھر آ کے بھی کرنا، سارے جیاں لی کرنا، ساڈے خاندان لی بھی کرنا، تاکہ ساڈے گھر چوں برکتاں شفٹ ہو جا. گھر میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ آج تو میرے گھر میں آئے گا، اور پھر کیا وہ جواب آتا ہے کہ آج میرے گھر میں نجات آئی. جو گولر کے درخت پر چڑھ کے اس کے اندر اتنا جذبات تھے کہ میں یسوع کو دیکھوں. تو جب ہمارے اندر اس طرح کے جذبات اور اظہار ہوگا کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ملنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں اتارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس گھر میں برکتیں اور نجات اور بحالی اور ہر طرح کی آزمائشوں سے آزادی ہی آزادی اور رہائی ہوگی، اور برکتیں ہوگی، خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، اور ہر طرح سے اس گھر میں بحالی آ جائے گی. سو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہم یسوع کی عزت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو کیا تحائف پیش کر سکتے ہیں، کیا تحفے دے سکتے ہیں.
कुर्बानियाँ उसकी हजूरी में ले कर के आओ। हम्द की कुर्बानी, अपने होंठों से उसकी हम्द करो, उसकी प्रस्तश करो। यीशु को पसंद है ये। सो आए खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम सारी बहनें मिल के आपके लिए दुआ करें, खुदावंद आपको हर तरह की परेशानियों से, आजमाइशों से, मुसीबतों से, और जो कुछ आपके ख़ानदानों घरों में हैं परेशानियाँ, खुदावंद आपको बहाल करेगा, आपको बरकत देगा। यीशु को अपने घर में उतारें। यीशु की इज़्ज़त और एहतराम के लिए जो कुछ आप करना चाहते हैं, जो तोहफ़े तहाइब यीशु की नज़र करना चाहते हैं, वो आप उसकी नज़र करें और दिल से करें, ना कि दिखावे के लिए, बल्कि हमने यीशु को खुश करना है, उसका एहतराम और उसकी इज़्ज़त करनी है हमने। आए खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें और दुआ करें। जिन किसी की मुश्किलात भी हैं वो भी हमें बता सकते हैं। मैं मिल के अपनी बहनों बेटियों के साथ आपके लिए दुआ करूँगी। आए हम दुआ करें। खुदावंद की पाक हजूरी में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, हमें जवाब देता है। वो कभी हमें नाउम्मीद नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारी जिंदा उम्मीद है, वो हमारा इत्मीनान है, वो हमारी तसल्ली है, और वही हमारी शादमानी है। खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे। ऐ मेहरबान खुदावंद, बहर बर के खालिक और मालिक, तू जो हमारा जिंदा आसमानी बाप है, तूने हमें अपने हाथों से बना के हमें अशरफुल मखलूकात ठहराया। तूने हमारी शक्लें अपनी हथेली पे खोद रखी हैं, तो हर वक्त हर रोज़ हमें देखता है और हमारी फिक्र करता है। परेशानी आजमाइश आती है, लेकिन खुदावंद तू अपने लोगों को थाम लेता है, तू संभाल लेता है, तू ईमान में हमें पुख्ता करता है, मजबूत करता है, हमें डावांडोल नहीं होने देता, हमें गिरने नहीं देता, तो हमें संभालता है। एक खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के तेरे ज़िंदा और पाक कलाम के लिए, तेरी सच्चाइयों के लिए, जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत मिलती है तेरे कलाम से। हम ताजगी पाते हैं, हम शादमानी पाते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम तेरी पैरवी करते हैं और तुझ में बढ़ते चले जाते हैं। ऐ खुदावंद मैं तेरी पाक हजूरी में दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के लिए। परेशानियां हैं जिन जिन खानदानों में तू जानता है, ऐ खुदावंद नईमा के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, जो खुदावंद किसी भी परेशानी में मुब्तला है, बीमार भी है, खुदावंद तू जानता है। घर के सारे हालात जिस तरह के भी है, खुदावंद तू उन पर अपना हाथ बढ़ा दे, उस घराने पर अपना हाथ बढ़ा, उन्हें अपनी खुशियाँ इत्मीनान दे और हर तरह की परेशानियों से उन्हें बहाल कर। खुदावंद तू उन्हें उठा खड़ा कर, माली तौर पर उन्हें बरकत दे। उनकी ज़रूरतों को खुदावंद तू जानता है, तू उन्हें पूरा कर। खुदावंद उन पर रहम कर, उन पर करम की निगाह कर। खुदावंद उस घराने पर तेरा साया हमेशा, कलवरी का साया उनके ऊपर रहे। बाकी सारी कलीसिया के लिए भी मैं दुआ मांगती हूँ, एक एक घराने के लिए भी दुआ मांगती हूँ, उन पर तेरा बरकत वाला हाथ ठहरा रहे। ज़िशान के लिए दुआ मांगती हूँ, बरकत, हिकमत और दनाई अपने बच्चे को अता फरमा। जितनी तेरी बेटियाँ यहाँ पर सरबसजूद हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए, तेरी तालीम पाने के लिए तेरे पास आई हैं, तेरे कदमों में सरबसजूद हैं। ऐ खुदावंद इन पर तेरी बरकत को मांगती हूँ, इनके घरानों पर तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी सरफराजी को मांग लेती हूँ। इनको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे,
ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस रफ़ाकत में, उनके लिए बरकत सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। तेरा बरकत वाला हाथ उन घरानों पर ठहरा रहे और उनकी खुदावंद हर तरह की ज़रूरत को तू जानता है, उनके दिल की मुरादों को पूरा कर। दुआ मांगती हूँ जो मौसम की वजह से सैलाब है, हर तरह तबाही मची हुई है पानी की वजह से, खुदावंद अपने लोगों को संभालना, लोगों की हिफाजत निगहबानी करना और इस तबाही से इन्हें बचा लेना। तेरे लहू में तेरे लोगों को छुपा देती, इन पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर खुदावंद, इसको संभाल, मदद फरमा। ऐ खुदावंद इस वक्त तो मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको संभाले रखे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो सूरत हाल है सैलाब की वजह से, खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, अपनी पनाह में रखे और आपको ईमान में मजबूत रखे, और आप हमें हमेशा हमारे साथ हर बुध को हमारे साथ शामिल हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।